Assalamu alaikum dear students, I am coming again here with a very beautiful topic, and that topic is related to applications of Bayat surface law. Dear students, we have already done first application of Bayat surface law, and that application was, you already know, the magnetic field due to a straight current carrying conductor. Okay, very nice. तो बेटा हमने पहले क्या किया, हमने एक एप्लीकेशन इसकी की, वो एप्लीकेशन थी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. ओके, वेरी नाइस. But dear students, today I will discuss it as one more application, and that application is magnetic field due to a circular coil at its center. Okay, very nice. तो बेटा आज की एप्लीकेशन क्या है? The second application of Bayat surface law is here like this बेटा. We had to find, हमें मालूम करना है magnetic field due to a circular coil at its center. Okay, very nice. But there are two cases for this, dear students, when I am talking about the magnetic field due to a circular coil. One case is to find magnetic field due to the circular coil at its center, and another case is to find magnetic field due to the circular coil but at any point on its axis. But dear students, today I am going to discuss here the magnetic field due to this coil at its point, but that point is its center. Okay, very nice. तो बेटा क्या है एप्लीकेशन? एप्लीकेशन ये है कि आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल, लेकिन एट इट्स सेंटर. फिर बाद में करेंगे, अगर मौका मिला, अगर टाइम मिला, तो दूसरी एप्लीकेशन भी करेंगे यहाँ टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस. लेकिन पहले ये एप्लीकेशन करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट हियर. तो बेटा क्या है यहाँ? What is second application? Second application is to find magnetic field due to a circular coil at the center. देखो बेटे क्या है. Let us take here a coil. ऐसे मैंने एक coil ले ली, circular coil. Let in this coil we pass a current I, and let this O is at the center, and R is radius of this circular coil in which current I is passed, but that current is passed in क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके बेटा, ये बात समझ में? क्या मैंने ले ली? मैंने एक सर्कुलर कॉइल ले ली और इसमें मैंने पास की करंट, और इस सर्कुलर कॉइल का रेडियस आर है और इस सर्कुलर कॉइल का सेंटर ओ है. अब हमारा क्वेश्चन क्या है? अब बेटा हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें मालूम करना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू दिस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल. ये है हमारा क्वेश्चन. लेकिन बेटा वी हैव टू यूज हियर बायट सर्फेस लॉ. ओके, वेरी नाइस. तो लेट अस स्टार्ट हियर. तो हमने स्टार्ट की, मैंने डायग्राम ड्रॉ की. अब देखो बेटा क्या लिखेंगे यहाँ. तो क्या हमने ले ली, लेट अस, हम क्या लिखेंगे यहाँ? लेट अस कंसीडर, क्या बेटा कंसीडर की? लेट अस कंसीडर ए सर्कुलर कॉइल of radius R. Let us consider a circular coil of radius R in which current I is passed. In which, इसमें क्या हमने पास की बेटा? करंट I, but in clockwise direction. In which क्या बेटा लिखेंगे? In which current I is passed. Okay, very nice. As shown in figure. And let O is its center. अब बेटा हमको मालूम क्या करना है? We have to find here magnetic field due to this coil but at its center. तो क्या मालूम करना है? We have to find, बेटा मालूम क्या करना है? We have to find B both in magnitude as well as in direction, B vector, at its center, at its center, at the center of the circular coil, that is O. यहां पर हमें magnetic field मालूम करना है. That is here our aim. हमारा क्वेश्चन ये है कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर एंड इन विच वी पास करंट आई बट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. Here the plane of the plane, this is the plane of the coil is parallel to the plane of the board. ठीक है ना? अगर हम ऐसे यहाँ ड्रॉ करते हैं, इसका मतलब है कि plane of this is
परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। लेकिन मैंने ऐसे ड्रॉ की तो इसका मतलब है कि प्लेन ऑफ दिस कॉइल इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ओके, सो प्लेन ऑफ दिस कॉइल इज लाइंग ऑन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, वी कैन आल्सो सी लाइक दिस। ओके, वेरी नाइस। तो बेटा हमारा क्वेश्चन ये है कि यहां हमें मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना है। अब क्या यूज करना है? वी हैव टू यूज हियर बायट-सावर्त लॉ। देखो बेटा क्या है, बायट-सावर्त लॉ क्या कह रहा है? बायट-सावर्त लॉ ये कह रहा है कि कोई छोटा सा एलिमेंट ले लो और फिर यहां मालूम करो मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या करेंगे यहां? वी विल डिफरेंशिएट, वी हैव टू डू हियर डिफरेंशिएशन। हम बेटा क्या करेंगे? हम इस कॉइल को डिवाइड करेंगे इनटू वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंट्स और फिर एक छोटा एलिमेंट लेंगे। इस छोटे एलिमेंट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, फिर होल मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे? इंटीग्रेशन लगाएंगे। ठीक है ना, पहले डिफरेंशिएशन फिर इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि बायट-सावर्त लॉ इज वैलिड फॉर ए स्मॉल करंट कैरिंग करंट एलिमेंट। ओके, वेरी नाइस। तो क्या करेंगे बेटा? डिवाइड दिस होल कॉइल इनटू वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंट्स एंड टेक वन सच स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ आइडियल। ठीक है ना, तो डिवाइड किया, लेट अस डिवाइड दिस होल इनटू वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंट्स एंड let us take a small element, let us take a small current element, small current element क्या बेटा? एलिमेंट आइडियल इस कॉइल पर आइडियल। ठीक है ना, मैंने स्मॉल करंट एलिमेंट यहां ले लिया बेटा आइडियल। ठीक है ना, यहां ले लिया यहां से यहां तक। ठीक है ना, और जब इस पे करंट पास करेंगे तो इसको अगर आई से जरब देंगे इस सारी के सारी आई डीएल को, और जब डीएल को आई से जरब देंगे तो इसको कहते हैं करंट एलिमेंट। ठीक है ना, अब क्या है? नाउ वी विल अप्लाई हियर बायट-सावर्त लॉ। तो बेटा चलो यहां क्या अप्लाई करेंगे? बायट-सावर्त लॉ क्या कह रहा है? बायट-सावर्त लॉ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट हियर बेटा, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर। लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड आइडियल, बिकॉज करंट इज गोइंग हियर अपवर्ड्स एंड हियर डाउनवर्ड्स। तो आइडियल और आर के दरमियान यहां थीटा है। ठीक है ना, ओके, वेरी नाइस। नाउ डियर स्टूडेंट्स, नाउ यूजिंग क्या यूज करेंगे? यूजिंग बायट-सावर्त लॉ, यूजिंग बायट-सावर्त लॉ यूज करेंगे। क्या कह रहा है? That is beta small magnetic field dB, that is small magnetic field due to ideal, small magnetic field dB due to ideal at point O, किसके बराबर होगा? at point O, that is center, point O क्या है बेटा? center is given by बायट-सावर्त लॉ, वो बेटा होता है dB is equal to mu naught 4 pi। बेटा लिखेंगे यहां IDL sin theta by r square। देखो बेटे क्या है? dB, the magnetic field due to this small current element ideal is equal to, here it is dB, that dB is equal to mu naught divided by 4 pi ideal sin theta, where theta is angle between r and ideal, divided by r square। यहां से जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना है वो कितनी दूरी पर है? आइडियल से आर की दूरी पर, और इसी का स्क्वायर लेना है। तो बेटा डीबी क्या ले लिया मैंने? म्यू नॉट 4 पाई आइडियल, ये बेटा आइडियल है यहां। ओके, आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। बट डियर स्टूडेंट्स, हियर थीटा इज 90, दिस थीटा हियर इज 90। हाउ? देखो बेटा कैसे, अगर आप इसको जूम करोगे तो ये स्मॉल एलिमेंट यहां लगेगा, आल्सो इट इज कर्वेचर हियर, इट इज कर्व हियर, बट इट विल अपीयर टू बी एज ए स्ट्रेट लाइन। अगर आप जूम करोगे इसको तो ये स्ट्रेट लाइन लग जाएगी, स्ट्रेट लाइन दिखेगी ये जूम करके। और ये आर, ये है आर बेटा, ये आर वेक्टर है, और यहां ये आइडियल वेक्टर है, आइडियल वेक्टर, ऐसी इसकी डायरेक्शन है। तो ये थीटा किसके बराबर होगा? ये आइडियल और आर वेक्टर के दरमियान, आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर के दरमियान ये थीटा कितना होगा बेटा? यहाँ 90 होगा, 90। क्यों? बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये टेंजेंट की तरह काम करेगा, यहाँ ये स्मॉल एलिमेंट टेंजेंट की तरह काम करेगा, ये रेडियस है, और रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो थीटा कितना होगा यहाँ? 90। इसलिए बेटा मैंने थीटा कितना ले लिया? 90। ये बात आई समझ में? हाँ सर, आई बात समझ में। देखो बेटा क्या सी डी एयर, ओके, वेरी नाइस। तो यहाँ देयरफॉर बेटा डीबी लिखूंगा, डीबी किसके बराबर लिखूंगा? म्यू नॉट 4 पाई बेटा आइडियल साइन थीटा के बदले लिखेंगे 90 डिवाइडेड बाय बेटा आर स्क्वायर। ये थीटा 90 है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की तरह जूम करके अगर जूम करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन लगेगी, स्ट्रेट लाइन दिखेगी।
तो ये टेंजेंट की तरह काम करेगी और ये रेडियस, तो रेडियस और टेंजेंट के दरमियान कितना होता है थीटा 90, तो थीटा यहां लेंगे बेटा 90। ओके, तो सी डी है देयरफॉर यहां बेटा डीबी किसके बराबर आएगा, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन 90 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। साइन 90 बेटा किसके बराबर है 1 के बराबर। ओके, तो बेटा ये किसके बराबर आएगा, सी डी है देयरफॉर बेटा डीबी आएगा बराबर डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर। बेटा ये है स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट एट इट्स सेंटर। This is the magnetic field, small magnetic field due to this small current element at point O, which is at a distance r. Okay, very nice. लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें इस सारी की सारी कॉइल से निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, यहां भी बेटे इंटीग्रेशन लगाएंगे और यहां भी इंटीग्रेशन लगाएंगे। इजी है ना, लिखो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, एट पॉइंट ओ, वो तो सेंटर है, एट पॉइंट ओ ड्यू टू दिस होल कॉइल क्या होगा बेटा, दैट इज, यहां भी इंटीग्रेशन लगाएंगे तो यहां भी बेटा इंटीग्रेशन डीबी और यहां भी बेटा इंटीग्रेशन म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर, दोनों तरफ से इंटीग्रेशन लगाओ एंड दैट विल गिव अस द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस होल कॉइल एट इट्स सेंटर। बेटा यहां भी इंटीग्रेशन मैंने की और यहां भी मैंने इंटीग्रेशन की। ओके, वेरी नाइस, उतार लो बेटा, लिख लो बेटा। अब यहां लिखेंगे बेटा, बता इंटीग्रेशन ऑफ डीबी किसके बराबर आएगा, वो बेटा बी के बराबर आएगा और इंटीग्रेशन यहां बेटा क्या आएगी, म्यू नॉट आई, ये सेम लिखेंगे ऐसे, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय बेटा क्या है 4 पाई, यहां आइडियल है, आइडियल 4 पाई। ओके, वेरी नाइस, 4 पाई और बेटा यहां ये आर स्क्वायर है। ओके, ठीक है ना, ये लिख लिया, लिख लो। देखो बेटा क्या है, सी डी है, तो देयरफॉर बेटा ये बी किसके बराबर आएगा, बी, ये म्यू नॉट भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है बेटा, पाई भी कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है बिकॉज इट इज स्टेडी करंट, और बेटा आर द रेडियस फॉर आवर केस इज कांस्टेंट है। तो डीएल यहां डीएल आइडियल, ये डीएल यहां चेंजिंग है, तो यहां बेटा क्या लिखेंगे बी, तो क्या बाहर करेंगे म्यू नॉट दैट इज कांस्टेंट है, और बेटा 4 पाई भी क्या है, ये भी कांस्टेंट बाहर करेंगे, आई को भी बेटा बाहर करेंगे और आर स्क्वायर को भी बाहर करेंगे। तो इंटीग्रल में क्या रखेंगे, डीएल, ठीक है ना। क्या क्या मैंने आउटसाइड लिखा बेटा, आउटसाइड निकाला मैंने म्यू नॉट आई 4 पाई और आर स्क्वायर मैंने बाहर किया, तो बेटा इंटीग्रेशन में क्या रहेगा, डीएल, ये डीएल मैंने यहां लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, ठीक है ना, बी। देखो बेटा क्या है, therefore बेटा b comes out to be as mu naught I divided by 4 pi r square, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ dl बेटा आएगी l, ठीक है ना। तो क्या आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ dl बेटे l आएगी। देखो l क्या है, dl इज स्मॉल लेकिन l इज दिस होल, अगर इंटीग्रेशन लिखेंगे तो होल, l मींस L here is equal to 2 pi r. L actually is here total length of the coil. There is small length of the coil, but L is total length of the coil. But that length is equal to its circumference. Therefore, circumference है ना L C के बराबर है. Actually L is equal to C और वो C के यहाँ C किसके बराबर है, T 2 pi r के बराबर, क्योंकि circumference of the circle किसके बराबर है 2 pi r. तो length of the coil कितनी है 2 pi r, तो L के बदले क्या लिखेंगे बेटा यहाँ 2 pi r, because यहाँ इसे L is equal to C is equal to 2 pi r. Therefore यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, B comes out to be as mu naught I divided by 4 pi r square, L के बदले लिखेंगे 2 pi r. Total length of this coil, that is circumference, is equal to 2 pi r. देखो बेटा पाई एंड पाई कैंसिल, 2 1 2 2 2 4, एक आर और एक आर इसके साथ कैंसिल, तो देयरफॉर बेटा बी किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय बेटा यहाँ 2 आर आएगा, 2 आर। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सर्कुलर कॉइल एट इट्स सेंटर। वेरी इजी, हो गया हमारा काम। ओके, वेरी नाइस बेटा, क्या है दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन जो हमको जरूरत थी, दैट वाज द एम ऑफ आवर क्वेश्चन, दैट इज दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर कॉइल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल और एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप इन विच करंट आई इज पासिंग। याद रखो, ये याद रखो बेटा। म्यू नॉट क्या है, दैट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड इट्स वैल्यू इज 4 पाई into 10⁻⁷ बेटा। आई इज करंट पासिंग थ्रू इट एंड 2 इज कांस्टेंट। आर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ दिस। तो कितना है द सेंटर, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 आर।
याद रखा। हाँ, अगर ऐसे ही एन टर्न्स होंगे तो एन टर्न्स के लिए क्या होगा, एन टर्न्स के लिए इसको सिंपली मल्टीप्लाई एन करो। फॉर एन टर्न्स के लिए क्या आएगा बेटा बताइए, फॉर एन टर्न्स बेटा ऐसे, तो फॉर एन टर्न्स के लिए क्या आएगा, फॉर एन टर्न्स, फॉर एन टर्न्स के लिए अगर ऐसी एन टर्न्स होंगे तो बेटा ये बी किसके बराबर आएगा, बी, यहां सिंपली मल्टीप्लाई करो इसे एन से बेटा, एन mu naught I divided by 2r. Okay, very nice. This is for n turns, n such turns, and magnetic field due to these n turns at the center is n से multiply करो, n mu naught I divided by 2r. Okay, very nice. जबान याद रखो, ये याद रखो। Okay, very nice. Now, ये तो this is magnitude of magnetic field due to this coil at the center. But magnetic field is a vector quantity. We had to find its direction as well at its center. Okay, very nice. आप क्या मालूम करना है इस B की? इस B की, क्योंकि B is a vector, it has both magnitude and plus beta, इसकी क्या होती है, डायरेक्शन दोनों होती है। मैग्नीट्यूड तो हमने निकाला, ये है मैग्नीट्यूड, ये एक टर्न के लिए, सिंगल लूप के लिए अगर ऐसी एन टर्न तो यहाँ एन मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अब बेटा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है इस सेंटर में, ये निकालनी है, बिकॉज बी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो निकाला, मैग्नीट्यूड इतना है, एन टर्न के लिए इतना है और एक टर्न के लिए बेटा इतना है, लेकिन डायरेक्शन निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ। ओके, नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट हियर थिंक दैट वी हैव टू गिव द आंसर। देखो बेटा क्या आप क्या निकालने में, डायरेक्शन ऑफ किसकी, डायरेक्शन किसकी बेटा। ओके, फॉर एन टर्न्स के लिए ये, और सिंगल टर्न के लिए बेटा मैंने लिखा सिंगल टर्न के लिए ये म्यू नॉट आई बाई 2r एक लूप के लिए, और एन सच लूप के लिए यहां मल्टीप्लाई एन करना है। आप निकाला, ये तो मैग्नीट्यूड है, लेकिन आप क्या निकालना है, डायरेक्शन बेटा। आप निकालेंगे डायरेक्शन किसकी, बी की, एट सेंटर, एट ओ, एट सेंटर, बी ओ मीन्स एट, डायरेक्शन ऑफ बी एट कहां पर बेटा, एट सेंटर, at the center of the loop or center of the circular coil, यहां लूप लिखो बेटा। तो क्या आएगा बेटा, देखो इसके लिए एक रूल है, एंड दैट रूल इज नोन एज राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल के जरिए हम बेटा मालूम करेंगे, दिस इज इजी वे, इजिएस्ट वे, राइट हैंड रूल इज द easiest way to find the direction of magnetic field at the center due to this current carrying circular loop. Okay, very nice. तो देखो बेटा ये राइट हैंड रूल क्या है, राइट हैंड रूल ये कह रहा है, दिस इज जस्ट अपोजिट टू द राइट हैंड थंब रूल दैट वी अप्लाइड देयर फॉर ए स्ट्रेट कंडक्टर। इसका अपोजिट है, देखो बेटा क्या है इसका अपोजिट क्या है, सीधे देखो बेटा क्या है, स्ट्रेट कंडक्टर। इसको साफ करेंगे बेटा। ओके, इसको साफ करेंगे, देखो बेटा क्या सीधे है। अब डायरेक्शन लिख, देखो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए क्या कर रहे थे, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए आई थी और ये लूप था, देखो बेटा सीधे है, याद है बेटा, याद है। अगर हम स्ट्रेट कंडक्टर के लिए थंब लेते थे डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब क्या लेते थे बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट, और कर्वेचर ऑफ फिंगर्स क्या लेते थे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लूप्स। लेकिन सर्कुलर कॉइल के लिए क्या है बेटा, सर्कुलर कॉइल के लिए देखो बेटा क्या है, सर्कुलर कॉइल के लिए ये कर्वेचर ऑफ द फिंगर्स लेना है, डायरेक्शन ऑफ द करंट है। क्या लेना है बेटा, क्या बेटा लेना है, कर्वेचर ऑफ द राइट हैंड, टेक राइट हैंड and then keep thumb erect and curve the finger just like I have curved. Now here in circular case it is the reverse of the straight conductor। देखो बेटा स्ट्रेट कंडक्टर में ये करंट की डायरेक्शन थी और ये मैग्नेटिक लूप की डायरेक्शन थी, ऐसे यहां। लेकिन ये सर्कुलर लूप के लिए these fingers, curvature of the fingers is the direction of current and thumb is the direction of magnetic field at the center, reverse of this case। ठीक है ना, देखो बेटा क्या तो यहां करंट क्या है, करंट ऐसी जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज हमारे केस के लिए, सॉरी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है तो ऐसी ही रखो। देखो बेटा ऐसी मैंने रखी, ऐसी यहां ऐसी रखी, ऐसी इस देखो बेटा ऐसे मैंने यहां आप ग्रिप की और ये हैंड यहां तो ये जो मैंने हैंड किया राइट हैंड को ऐसे है, तो थंब इज इरेक्ट, तो थंब यहां कैसे आएगा, ये आएगा बेटा, इट विल हियर कम डाउनवर्ड्स and this thumb will give the direction of magnetic field at the center and the direction of the curvature of the fingers क्या बेटा देता है, curvature of fingers here in this case gives is taken to be as direction of current,
और बेटा थंब क्या है, थंब क्या लेते हैं हम, थंब, थंब को यहां डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। थंब यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और कर्वेचर ऑफ द फिंगर्स बट राइट हैंड की, और वो बेटा यहां क्या है, यहां इंडिकेट करता है करंट है। बेटा क्या इंडिकेट करता है, करंट है। लेकिन थंब व्हेन कीपिंग इरेक्ट क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड। चलो लिखेंगे ये, लिख लो आप, बेटा लिख लो, लिखो बेटा क्या, लिख लो, लिख लो, डायरेक्शन ऑफ बी लिखनी है, डायरेक्शन ऑफ बी, एंड दैट डायरेक्शन ऑफ बी इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। तो लिख लो राइट हैंड रूल क्या है। राइट हैंड रूल बेटा लिखो, तो बेटा लिख लो राइट हैंड रूल क्या है। व्हाट इज राइट हैंड रूल, when we take curvature of the fingers, when we take curvature of the fingers of right hand in the direction of electric current, in the direction of electric current of electric loop, in the direction of electric current of circular loop, keeping thumb erect, keeping thumb erect, right hand की लेता हूं, keeping thumb erect, then thumb will give us the, then thumb will give us the, will give us the direction of, क्या देगा, will give us the direction of B at center, B at center क्या देगा बेटा, will give us the बेटा क्या देगा हमको, then thumb will give us the direction of magnetic field at the center। देखो बेटा अगर ऐसी नहीं, करंट ऐसी है, कर्वेचर ऐसी है, तो ये थंब क्या होगा, इनवर्स, here it is direction is at the center में क्या आएगी बेटा, इस ऊपर क्या आएगी, बी की डायरेक्शन, दैट इज इनवर्स, बी आएगा बेटा यहां इनवर्स। व्हाट इज इनवर्ड मीन, इनवर्ड मीन्स परपेंडिकुलर टू द plane of this coil as well as plane of the board but directed inwards as per right hand rule। देखो बेटा क्या है, when we take curvature of the fingers, curvature of the, देखो बेटा curvature ऐसी क्या है, मैंने ऐसे रखा, curvature of the fingers of right hand in the direction of electric current, in the direction of electric current in the direction of electric current of circular loop, okay very nice, ये circular loop है। keeping thumb erect, thumb को क्या रखते हैं, erect ऐसे नहीं करना है, erect रखना है, keeping thumb erect, then thumb will give us the direction of B at the center of the loop, at the center of the loop, okay very nice, at the center of the circular coil or circular loop। आई बात समझ में। अगर बेटा यहां करंट ऐसी होती, देखो बेटा अगर ऐसी करंट होती, ऐसे यहां करंट होती, देखो बेटा क्या है, करंट ऐसी होती, ये क्या है यहां एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन क्या होती बेटा बताए, यहां सेंटर में क्या होती, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ऐसे रखती, ऐसी आई विल कीप हियर, ऐसे बेटा मैंने किया, कर्व किया फिंगर्स को और थंब इरेक्ट रखा और ऐसे रखो। नाउ टेक द डायरेक्शन ऑफ कर्वेचर ऑफ फिंगर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आई, देन थंब क्या आएगा यहाँ, द थंब विल बी हियर, इट विल बी आउटवर्ड्स, इट विल बी हियर आउटवर्ड्स। तो आउटवर्ड किसे लिखते हैं, आउटवर्ड इज डिनोटेड बाय डॉट एंड इन ए सर्कल, डॉट इन ए सर्कल, दैट मींस आउटवर्ड्स। लेकिन इनवर्ड्स किसे लिखते हैं, इनवर्ड्स ऐसे लिखते हैं, क्रॉस एंड सर्कल, दैट मींस इनवर्ड्स। यहाँ इनवर्ड्स है हमारे केस के लिए, लेकिन अगर ये केस होता तो इसके लिए क्या होता, आउटवर्ड्स, लेकिन हमारा केस ये है, तो हमारे केस के लिए क्या है डायरेक्शन, इन आवर केस, यहां लिखो बेटा, ये लिख लिया, हाँ लिख लिया, देखो बेटा इन आवर केस the direction of B is inwards, the direction of B is inwards, the direction of B is inwards, okay very nice, inwards at the center, at the center of the loop, okay very nice। यहां मैंने लिखा, तो किसी लिखते हैं, देखो बेटा ऐसे सीरियल, यहां देखो बेटा क्या है, यहां ऐसी, ये ऐसे आएगा, ऐसी बी है, ऐसी, दैट इज बी हियर इज इनवर्ड्स, ऐसी बेटा देख लिया,
ऐसे ऐसे, ये करंट की डायरेक्शन है और ये इनवर्स है थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, वेरी नाइस, यू हैव गॉट दिस. नाउ डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, तो डायरेक्शन भी आ गई, मैग्नीट्यूड भी आ गया. अब हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर? आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर कॉइल नाउ at its axis at any point on its axis. This is our next question here. Okay, very nice. देखो बेटे, see here, what is our next question here? Next question is magnetic field, that is third case or second case of the same question. Magnetic field due to the circular coil at any point on its axis, at any point on its axis. ये हमारा next question. देखो बेटा क्या है? What is our next question here? We have to find magnetic field due to this current carrying circular loop, but now at any point on its axis. देखो बेटा क्या है? ये मैंने यहां में लूंगा एक. Let us take this as a circular coil. Note, see here. Here plane of the coil is perpendicular to the plane of the board. Okay, very nice, dear students. See here. ये देखो बेटा क्या है? ये है एक, ये है सर्कुलर लूप. ठीक है, आपने ये है सर्कुलर लूप. तो देखो बेटा, पहले केस में मैंने किया था, ये ऐसी मैंने रखी थी, दैट इज प्लेन ऑफ दिस वाज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड. लेकिन दूसरे केस के लिए बेटा क्या है? ऐसे मैंने रखी, ये ऐसे नहीं, ऐसे किया मैंने, इसको ऐसे रखा बेटा. तो ऐसे ही, तो ये इसका प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है यहाँ. ओके, तो बेटा लेट अस हियर, आई एम पासिंग हियर करंट आई, ऐसी मैंने पास की, और बेटा ये ठीक है ना. ओके, let A is its center and this is its axis. ये बेटा इसकी axis है and this is its center. Okay, very nice. Let we have to find magnetic field at point P which is lying on its axis, but let us say this is at a distance x from the center of the coil. देखो बेटा क्या है क्वेश्चन. देखो क्वेश्चन क्या है? This is a circular coil. मैंने इसको ऐसे रखा, ये है, लेकिन ऐसे रखना है यहाँ, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखना है बेटा. दिस इज, देखो बेटे क्या है? दिस इज इट इज, ये देखो बेटे यहाँ ऐसे रखेंगे, ये है ना, ये एक्सिस है, ये एक्सिस. अगर इसको ऐसे लाएंगे, ये एक्सिस है. ये इसी एक्सिस पर कोई पॉइंट लेना है और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप से या करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल से. निकालना है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, बट वी हैव टू यूज हियर मैग्नेट बैट्स ऑफ दिस लॉ. ओके, ये थोड़ा टॉप है, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का बैट्स लॉ का, लेकिन इतना टॉप भी नहीं है कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा. थोड़ा टॉप है और लॉन्ग भी है, लेंथी भी है. देखो बेटे क्या है? तो क्या है, हमें मैलम क्या करना है? व्हाट वी हैव टू फाइंड, लेट्स हियर. लेट्स टेक ए सर्कुलर कॉइल. ऐसे साफ बनाएंगे. Of center O and radius A. Now plane of the coil, plane of this is perpendicular to the plane of the board. लेकिन आप अपनी कॉपी के लिए लिखेंगे plane of the page, लेकिन मेरे लिए बोर्ड है तो plane of the board पर perpendicular है इसका plane. Let us take a coil of radius, circular coil of radius A. Okay, very nice. Whose plane is perpendicular here, whose plane is perpendicular to the plane of the board. Whose plane is perpendicular to the plane of the board. इसका प्लेन जो है बेटा, इसका प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर है बोर्ड के प्लेन पर. इसका प्लेन, ये है इसका प्लेन बेटा, देखो ये है इसका प्लेन. मैं ऐसे नहीं रखता हूं, मैंने ऐसे रखी. लेट अस टेक ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस, कितना बेटा इसका है? रेडियस ए, यहां से यहां तक ए. हुज प्लेन इज, इसका प्लेन जो है, इसका प्लेन ऐसे है, इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड. ओके, दिस इज इट इज एक्सिस. आई बात समझिए, एक्सिस है बेटा, ऐसे ये एक्सिस है. एक बार फिर दिखाऊंगा, ये एक्सिस है और मैंने इसको ऐसे रखा.
ये है एक्सिस. Now what we had find? We had find magnetic field at any point on this axis. Let this point is P, which is at a distance. Let us take this to be as x from the center of the circular coil. तो हमें बेटे क्या मालूम करना है? We have to find B कहां पर बेटा? B at point P. B at point P, which is lying on its axis and is at a distance. बेटा कितनी distance पर है ये? It is at a distance which is lying at a distance. बेटा कितना distance है? At a distance which is lying at a distance x from O, that is center of the coil. That is our question. ये देख लो question क्या है. We had find B at point P, which is lying on its axis, but is at a distance x from the center of the lobe. ये है हमारा question. Okay, very nice. तो बेटा हमको अब क्या करना है? We have to divide this whole coil into very very small elements. Then I have to find magnetic field due to the small current element at this point, and then I have to take integration. लेकिन यहाँ थोड़ा complicated process दिखाएंगे कैसे. Little bit here is a complicated process. Not too complicated that you will not get it. Okay, very nice. See here, देखो बेटे क्या है? ये क्वेश्चन लिख लिया? हाँ, ओके, लिख लो क्वेश्चन क्या है. एक बार फिर रिपीट करूंगा. कॉइल ले ली, इसका रेडियस ए ले लिया और हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट पी व्हिच इज लाइंग ऑन दिस एक्सिस. लेकिन एक्सिस देखो बेटा, ये एक्सिस इस वक्त बोर्ड पर है. याद रखो, ओपी एक्सिस बोर्ड पर है, बोर्ड पर लाई करते हो रही है, ऐसी लाई करते हो रही है सॉरी. लेकिन ये सॉलिड पॉट है यहाँ बेटा. ये सॉलिड लाइन इट मींस इट इज आउटवर्ड्स, इट इज आउटसाइड दिस बोर्ड, बट दिस डॉटेड इज इनसाइड द बोर्ड. ऐसे अगर इसको बेटा, half of this coil is inside the board and half of is above the board. The half which is indicated by solid line is above the board, and the dotted which is indicated by dotted is here inside the board. But the plane of this coil is perpendicular to the plane of the coil is perpendicular to the plane of the board. ऐसे मैंने रखी है. लेकिन ये एक्सिस किस पर लाई करती है? बोर्ड पर लाई करती है. OP is lying here on the plane of the board. क्योंकि ये थोड़ा little bit कॉम्प्लिकेटेड है. इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ट्राई करनी. ओके, लिख लिया? लिख लो, देख लो आप क्या करेंगे. See here. Now divide this whole coil into very very small elements and take one such element. मैं लूंगा यहाँ कोई एलिमेंट यहाँ at let us take here this is point C. यहाँ C पर मैंने एक छोटा मोटा एक एलिमेंट ले लिया CD. यहाँ upwards let us take this CD as I. नहीं बेटा, ऐसे C लिखो, यहाँ C लिख लो, बीच में C. तो यहाँ अराउंड C क्या ले लिया बेटा? आपने एक आइडियल ले लिया, एक आइडियल एलिमेंट ले लिया. ये एलिमेंट यहाँ. तो इसका मतलब है इस एलिमेंट का हाफ बेटा, इस एलिमेंट का हाफ इनसाइड है और हाफ आउटसाइड है. हाफ इनसाइड है, ये तो बहुत छोटा है लेकिन है ना, मान लेना है. ओके, वेरी नाइस. सी डियर, तो let us take a small current element. Let us take a small ideal at point C. यहां पर at C के अराउंड ले लिया. यहां एक आइडियल ले लिया. Now अब क्या? Let this point P is at a distance R from this element. Let it is at a distance R from this element. कितनी दूरी पर है? R. Okay. Now using Bayes-Safdie's law. Okay, अब हम क्या यूज करेंगे बेटे? Bayes-Safdie's law. Okay, see here. No magnetic field due to this small current element at point P, which is at a distance R, is given by Bayes-Safdie's law. देखो बेटे क्या. Now dB due to बेटे किससे? Due to ideal at point P किसके बराबर आएगा बेटा? That is given by Bayes' law. dB is equal to mu naught 4 pi IDL sin theta by R square. Okay, very nice. Yeah. Where mu naught is permeability of free space, 4 pi is constant, pi is 22/7. Ideal is this current element, and sin theta. Theta is angle between ideal and R. Theta किसके दरमियान एंगल होता है? आइडियल वेक्टर एंड R वेक्टर के दरमियान. ये थीटा किसके दरमियान? यहाँ ये थीटा है, दिखाऊंगा. एक्चुअली ये इस लाइन और इस लाइन के दरमियान नहीं दिखता है, लेकिन है नहीं. जैसे ही दिखता है वो है नहीं है.
देखो बेटा क्या है, ये थीटा ये 90 है, देखो बेटा ये कैसे 90 है, ये थीटा यहाँ 90 है, देखो बेटा कैसे। This or the radius of this does not make angle theta is equal to 90 with r, radius नहीं, लेकिन ये बेटा देखो बेटा, ये यहाँ ऐसे है, ऐसे बेटा देखो पहले दिखाऊंगा, ये यहाँ ये, आप इसको ऐसे रखूंगा, ये बनाता है आर के साथ, ये इस आर के साथ, ये छोटा है ऐसे, ये थीटा है, थीटा इज 90, यहाँ इस साइड और इस साइड में 90 है विद दिस और, ये नहीं, रेडियस ऑफ द सर्कल डज नॉट मेक एंगल थीटा, दिस थीटा हियर इज 90, दैट इज दिस आइडियल एंड आर, आइडियल एंड आर के दरमियान ये थीटा है, आइडियल एंड आर के दरमियान, आइडियल एंड आर के दरमियान थीटा हियर 90 है। तो बेटा देखो क्या है, यहां क्या लिखेंगे, थीटा हियर इज 90, थीटा हियर इज 90, व्हाई, बिकॉज हियर दिस आर इज परपेंडिकुलर टू आइडियल वेक्टर, क्यों, क्योंकि ये थीटा हियर दिस व्हेन वी टेक, व्हेन इट इज पॉसिबल व्हेन द साइज ऑफ दिस रिंग इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस एट व्हिच वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर बेटा इसका साइज है या इसका रेडियस है बहुत छोटा एज कंपेयर टू द डिस्टेंस वेयर वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, तो इस लिहाज से ये इस वक्त ये आर इस पर परपेंडिकुलर होगा, एजम्पशन है, ऑलमोस्ट इट इज परपेंडिकुलर, ओके वेरी नाइस, थीटा हियर इज 90। तो बेटा देयरफॉर बताइए डीबी किसके बराबर आएगा, डीपी म्यू नॉट 4 पाई बेटा आई डी एल साइन थीटा के बदले यहां 90 लिखेंगे डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो साइन 90 बेटा किसके बराबर है, साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो बताइए किसके बराबर आएगा। Therefore, beta dB comes out to be as mu naught IDL into 1 because sin 90 is 1 divided by 4 pi beta r square. Okay, therefore यहाँ लिखेंगे dB is equal to बेटा किसके बाद mu naught IDL divided by 4 pi r square. Okay, very nice. लेकिन बेटा इस ट्रायंगल में देखो बेटा, ये उतार लो पहले, लिख लो। अब इस ट्रायंगल में ये क्या है 90, देखो बेटा ये थीटा ये नहीं है, मैंने कहा कि ये इसके साथ रेडियस के साथ ये 90 नहीं बनाता है, क्योंकि एक ही ट्रायंगल में दो 90 एंगल्स नहीं हो सकते, ये इसके साथ बनाता है, एक्चुअली ये इसके साथ, मैंने कहा ना कि इसके साथ बनाता है यार, ऐसे मैंने ले लिया, इसके साथ अगर ऐसे रखेंगे आप तो ये इसके साथ नहीं बनाता है, इसके साथ नहीं बनाता है यार, क्योंकि यहाँ डबल 90 आएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल इन अ ट्रायंगल। तो ये यहाँ 90 है, ये यहाँ हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो बेटा बताइए आर स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ये आर स्क्वायर आएगा बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो लिख लो बेटा, देखो क्या लिखेंगे यहाँ, see here r square is equal to this r square is equal to a square plus x square because by Pythagoras Pythagoras theorem। इन किस ट्रायंगल में, COP में, किस राइट ट्रायंगल में, ट्रायंगल COP में r स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय परपेंडिकुलर प्लस b स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो बेटा देयरफॉर यहां क्या लिखेंगे, db किसके बराबर लिखेंगे, म्यू नॉट idl डिवाइडेड बाय 4 पाई और r स्क्वायर के बदले लिखेंगे यहां a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। बेटा इसकी लिखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहां लिखो इसकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वेरी नाइस, बिकॉज बाय दिस by Pythagoras theorem मैंने r स्क्वायर लिखा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ओके लिख लो बेटा। आप देखो क्या है, सी डियर यहां ये सॉल्व करेंगे, हाँ कर लो सर साहब। देखो बेटा क्या है, तो देयरफॉर dv किसके बराबर है, dv इज हियर इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई, यहां बेटा idl, बेटा यहां r स्क्वायर के बदले लिखा मैंने a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो इसी का नाम लिखा मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये जबानी याद रखो यहाँ, ओके वेरी नाइस। म्यू नॉट 4 पाई आइडियल बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, r स्क्वायर के बदले लिखा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना, हाँ देखो बेटा क्लियर, ओके वेरी नाइस। नाउ हम एक और एलिमेंट लेंगे, ये इस लिहाज से कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि हम दो एलिमेंट लेते हैं। जो भी क्वेश्चन इससे पहले हमने देखे हमने खाली एक करंट एलिमेंट ले लिया और बैट्स लॉ यूज किया, लेकिन यहाँ हमारे इस क्वेश्चन के लिए जो लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है, हम यहाँ दो करंट एलिमेंट लेंगे, डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ भी एक और लेंगे, तभी काम बनेगा, वरना यहाँ काम नहीं बनेगा। यहाँ लेंगे एक और एलिमेंट, मान लीजिए कि ये पॉइंट डी के अराउंड मैंने एक और एलिमेंट लिया और इसका नाम रखा आइडियल डैश, क्या रखा आइडियल। तो अगेन बेटा बताइए कितनी, यहाँ से यहाँ ये भी होगा बाय सिमेट्री, इट विल बी आल्सो इक्वल टू आर, ये भी आर के बराबर होगा। देयरफॉर बताइए बेटा, नाउ टेक अनदर एलिमेंट, क्या लेंगे अनदर एलिमेंट,
अनदर करंट एलिमेंट आइडियल डैश किसके अबाउट पॉइंट डी, अबाउट पॉइंट डी। therefore बेटा therefore dB dash, therefore magnetic field due to this ideal dash at point B क्या आएगा, due to this ideal dash this is diametrically opposite to this, this is diametrically opposite to this, okay याद रखना, this is diametrically opposite to this। तो मैंने एक another element लिया ideal which is ideal dash बेटा ये ideal dash which is diametrically opposite to ideal, okay very nice। now about point D लिया ideal dash। now magnetic field due to this ideal dash at point B क्या आएगा बेटा, magnetic field due to this ideal dash at point B क्या आएगा बेटा, therefore वो आएगा यहाँ dB dash is equal to mu naught 4 pi IDL sin theta by बेटा आएगा r स्क्वायर, क्योंकि r तो सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली ये आएगा लेकिन डायमेट्रिकली अपोजिट, ओके। मैग्नीट्यूड सेम आएगा लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट आएगी, वो देखना है। मैग्नीट्यूड सेम आएगा दोनों का, देखो बेटा क्योंकि सिमेट्री है यहाँ, सिमेट्री के हिसाब से, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट आएगी, ओके। देखो बेटा देयरफॉर बेटा यहाँ लिखेंगे dB डैश इज इक्वल टू, यहाँ अगेन ये थीटा भी यहाँ, अगर यहाँ बेटा लेंगे ऐसे, देखो अगर इसको ऐसे करेंगे तो देखो बेटा क्या है यहाँ इस डीएल, ये डीएल है, डीएल और अगेन बेटा देखो इस डीएल और यहाँ दिखाएंगे इस डीएल यहाँ बेटा देख लो, पहले ऐसे फिर ऐसे मैंने किया इस डीएल, इस यहाँ डीएल क्योंकि डायमेट्रिकली अपोजिट टू दिस, ये और ये आर के भी दरमियान होगा थीटा 90 when size of this is very small, this is approximation, ये 90 बनाएगा इसके साथ ये r क्या बनाएंगे बेटा, approximation it is 90, it is equal to 90 यहाँ छोटे एलिमेंट के साथ। आई बात बेटा समझ में, देखो यहाँ मैंने किया ऐसे, देख लो यहाँ ऐसे रखा कलम, तो इसके साथ क्या बनाएगा, इसके ऐसे मैंने किया, इसके साथ ये क्या बनाएगा, ये r, ये 90 बनाएगा, ये इसके साथ नहीं बनाएगा, रेड इसके साथ नहीं बनाएगा, ठीक है ना। ये थीटा क्या है, थीटा 90 है, किसके दरमियान, r वेक्टर एंड आइडियल डैश वेक्टर के दरमियान। ये थीटा भी यहाँ 90, ये थीटा भी 90 है यहाँ, जैसे कि यहाँ ये थीटा 90 था, तो बेटा किसके बराबर आएगा, ओके वेरी नाइस। तो लिख लो यहाँ therefore dB dash is equal to mu naught by 4 pi IDL sin बेटा लिखो यहाँ 90 अगेन डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ओके वेरी नाइस। तो sin 90 बेटा किसके बराबर है, 1 के बराबर, therefore बेटा dB dash is equal to mu naught 4 pi IDL, क्योंकि sin 90 is 1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ओके वेरी नाइस। तो बेटा ये सॉल्व करेंगे, देख लो बेटा, देखो बेटा क्या है, नाउ therefore this dB dash is equal to mu naught 4 pi बेटा, यहाँ आइडियल लिखेंगे लेकिन आइडियल डैश है, ये आइडियल डैश। तो r स्क्वायर किसके बारे, क्योंकि ये एलिमेंट से इस एलिमेंट से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, तो बेटा ये आइडियल डैश किसके बराबर, यहाँ तो आइडियल डैश सॉरी dB डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आइडियल डैश डिवाइड बाय r स्क्वायर, किसके बराबर आएगा, r स्क्वायर अगेन आएगा बेटा बराबर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी 90 है, तो अगेन ये r स्क्वायर किसके बराबर आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो अगेन लिखिए a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ओके। यहाँ लिख लो बेटा, देखो बेटा ओके ठीक है ना, बात आई समझ में, हाँ ओके ये लिख लो, देखो बेटा क्या है dB डैश, नाउ dB डैश इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे पहले आइडियल किसके बराबर है, आइडियल डैश, क्योंकि ये छोटा एलिमेंट है, ये भी छोटा एलिमेंट है, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का से डीएल डैश, ये तो बस मैंने किसके लिए रखा था, जस्ट टू बेटा टू डिफरेंशिएट दैट हियर इट इज एट द बॉटम, अदरवाइज आइडियल और ये सेम है, दोनों करंट एलिमेंट की लेंथ सेम है, करंट भी सेम है, लेंथ भी सेम है, तो यहां लिखेंगे हियर बेटा क्या लिखेंगे, हियर आइडियल इज इक्वल टू आइडियल डैश, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, सब कुछ सेम है, तो देयरफॉर बेटा dB डैश के बदले क्या लिखूंगा, dB डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, तो आइडियल के डैश के बदले लिखेंगे आइडियल डिवाइडेड बाय बेटा क्या है नीचे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ओके। इसकी लिखो बेटा, इसको लिखो यहाँ इक्वेशन नंबर सेकंड, तो व्हाट वी गेट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो dB किसके बराबर आएगा, dB डैश, तो इस करंट एलिमेंट से जितना मैग्नेटिक फील्ड यहां होगा, इसी करंट एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से यहां पर भी होगा, क्यों, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड में बताइए, व्हाट वी विल गेट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज
दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और बेटा ये भी किसके बराबर है, म्यू नॉट 4 पाई आइडियल डिवाइड बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो दोनों सेम है, तो db इज इक्वल टू db डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लिखो बेटा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा, देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलेगा हमको, Therefore from first and second में क्या आएगा, from first and second बेटा क्या लिखेंगे, db is equal to db dash is equal to db is equal to db dash, दोनों सेम है तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट idl डिवाइडेड बाय 4 पाई, यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ओके वेरी नाइस, ये सब याद रखो। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 हियर, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्या लिखा बेटा मैंने, db इज द मैग्नीट्यूड ऑफ db, डायरेक्शन नहीं है, db खाली मैग्नीट्यूड लिखता हूं, that magnitude of db is equal to db dash and is equal to mu naught ideal divided by 4 pi a square plus x square। ओके वेरी नाइस। अब इनकी डायरेक्शन देखनी है, ये ज़बानी याद रखो यहाँ। ओके वेरी नाइस, लिख लिया, पहले उतार लो, इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन, ये और ये इंपॉर्टेंट है। करेंगे बेटा सॉफ्ट, हाँ सर कर लो साफ। ओके वेरी नाइस, देखो बेटा तो देयरफॉर बेटा यहां भी लिखेंगे, यहां ऐसे नोट करेंगे, db इज इक्वल टू db डैश इज इक्वल टू, अगेन लिखेंगे आप ये खातिर म्यू नॉट आइडियल 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी है नॉर्म, यहां मैंने यहां नॉर्म लिखा है इसकी, इक्वेशन नंबर 3। देखो बेटा क्या, अब ये भी साफ, ये मैंने रिपीट किया यहां। ओके सीरियर, देखो बेटा क्या है, ये डायग्राम साफ बनाएंगे। यहां ये आइडियल है, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट बेटा डी, यहां ये बेटा आइडियल डैश है, और बेटा ये सेंटर है, यहाँ इसका रेडियस कितना है, ये बेटा ये भी यहाँ ए के बराबर। बेटा ये क्या है, यहाँ ये पॉइंट पी कितनी दूरी पर है, इट इज एट ए डिस्टेंस एक्स की दूरी पर है, और फ्रॉम द सेंटर दिस पॉइंट पी। नाउ डायरेक्शन आप देखो बेटा क्या है, अब डायरेक्शन यहाँ देखो बेटा, ये है आर, यहाँ ऐसे ज्वाइन किया था, और बेटा ये भी आर है, दोनों आर के बराबर है आर। सी नाउ दिस इज एक्चुअली आर वेक्टर फ्रॉम दिस, और यहाँ ये आइडियल डैश है, ऐसी यहाँ करंट आई ऐसी है, आई ऐसी करंट है, करंट यहाँ ऐसी जा रही है करंट, और यहाँ बेटा ऐसी करंट जा रही है। ठीक है, देखो बेटा now we have to, what is our next question, we have to find directions of db and db dash vectors, because we have to deal here with the vectors and that will give us the correct answer। okay very nice, that will lead us to the conclusion of the question। देखो बेटा क्या है, now पहले इस db की डायरेक्शन, ये db है यहाँ परपेंडिकुलर, ये the direction of db due to ideal at point p इज ऐसी बेटा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये db होगा परपेंडिकुलर टू r, ये इसको परपेंडिकुलर होगा r। क्यों, देखो बेटा द डायरेक्शन ऑफ db, देखो बेटा वेक्टर फॉर्म ऑफ क्या होती है db की, बैट्स लॉ की वेक्टर फॉर्म 4 म्यू नॉट 4 पाई IDL वेक्टर क्रॉस ऑल वेक्टर डिवाइडेड बाय होता है r क्यूब। ये दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ बैट्स लॉ। वेक्टर फॉर्म क्या होती है, वेक्टर फॉर्म db is equal to mu naught 4 pi IDL vector cross R vector divided by magnitude R cube। The direction of db is perpendicular to ideal as well as R vector and plane containing ideal as well as R. That is the direction of db is along the direction of ideal cross R vector cross R vector। Okay, very nice. The direction of db vector is ideal vector cross R vector, that is it is perpendicular to both ideal as well as R and the plane containing ideal and R। देखो बेटा यहाँ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, देखो बेटा मैंने क्या लिया, मैंने इस db वेक्टर को परपेंडिकुलर ले लिया R को, क्योंकि इट इज परपेंडिकुलर टू R, यहाँ मैंने ऐसे ड्रॉ किया। क्यों, देखो बेटा यहाँ एक करंट एलिमेंट है, ऐसी है करंट एलिमेंट, अगर इसको लेंगे यहाँ, अगर हम यहाँ लेंगे ऐसे ऐसे यहाँ करंट एलिमेंट पर, तो ये db यहाँ R पर भी परपेंडिकुलर होगा और आइडियल पर भी परपेंडिकुलर होगा, यहाँ इस आइडियल पर भी परपेंडिकुलर होगा।
तो डायरेक्शन है डी। देखो बेटा कैसे आइडियल केस अगर आप ऐसे लेंगे, करंट यहाँ ऐसी आ रही है, ऐसी आ रही है करंट बेटा, देखो बेटा करंट ऐसी आ रही है, यहाँ ऐसी आ रही है, क्योंकि मैंने लिखा ना ऐसी आ रही है करंट। अगर आप रखेंगे ये देखो बेटा यहाँ करंट आइडियल, ये तो बेटा आइडियल है और ये तो बेटा आर है, तो ले लो आइडियल क्रॉस आर, आइडियल आइडियल ये है बेटा आइडियल ऐसी है, ऐसी ना आइडियल करंट ऐसी आ रही है, आर है ना यहाँ, तो आइडियल क्रॉस आर, आइडियल क्रॉस आर, आइडियल क्रॉस आर ऐसे किया तो ऐसे ना थम ये ऐसे आएगा बेटा, ऐसे आएगी डायरेक्ट, याद रखा। ये आइडियल है ऐसी, आइडियल ऐसी है, ऐसी है आइडियल, देखो बेटा ऐसी आइडियल, ऐसी 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 आइडियल, आर ऐसी, तो आइडियल क्रॉस मींस आइडियल पर हाथ रख के ऐसे करो, आइडियल को मूव करो टुवर्ड्स आर, आर यहाँ ऐसी, तो ये आएगा ऐसी, तो ऐसी आएगी, ये डायरेक्शन देगा, दैट थंब विल गिव द डायरेक्शन डीबी, दिस विल बी परपेंडिकुलर टू आर एज वेल एज आइडियल। ओके वेरी नाइस। सिमिलरली यहां पर भी क्या होगा बेटे, यहां पर भी ये डीबी क्या होगा, ये डीबी परपेंडिकुलर, लेकिन यहां डीबी डैश लिखेंगे, डीबी डैश, because dB dash is magnetic field due to this, and dB is this is the direction of magnetic field due to ideal at point P पर। देखो बेटे यहाँ ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, यहाँ ये x एक्सिस है, और ये बेटे देखो यहाँ ये y एक्सिस है, यहाँ वर्टिकली बेटा ये एक्सिस डैश, ये y एक्सिस है, y डैश मान लो। Okay, let us take this angle to be as phi, and this is also due to symmetry phi। Okay, ये भी phi ले लिया, ये भी phi ले लिया। Let us take this angle to be as phi and this angle to be so symmetry, it is also phi। मैंने ले लिया for sake of simplicity। ओके, देखो बेटा अब तमाशा, देखो नीचे वाला कैसे होगा, नीचे वाले में करंट बेटे देखो बॉटम पार्ट पर करंट कैसी होगी, यहाँ करंट ऐसी आ रही है, ऐसी आ रही है, करंट जब ऐसी आ रही है तो आर ऐसी है, तो आइडियल क्रॉस ऐसी लिखो बेटा, देखो यहाँ करंट ऐसी जा रही है, यहाँ करंट ऐसी आ रही है, तो करंट की डायरेक्शन ये है। देखो बेटा अगर आप ऐसे करेंगे आइडियल टू क्रॉस आर, आइडियल क्रॉस, तो ये ऐसे आएगा, ऐसी देखो बेटा कैसे आएगा, यहाँ ये आइडियल है बॉटम पार्ट, आइडियल यहाँ आर, यहाँ अगर आइडियल क्रॉस, ये आइडियल है और इसको क्रॉस करो आर के, तो ये ऐसे आएगा, यहाँ ऐसे नीचे आएगा ऐसे, आइडियल क्रॉस आर, आइडियल क्रॉस आर की तरफ ले लो, ये आइडियल है, यहाँ देखो बेटा आइडियल क्रॉस आर की तरफ ले लो, इसको आर की तरफ, तो ये ऐसे आएगा, तो ये नीचे आएगा। ये थोड़ा घर में भी ट्राई करो, थोड़ा टफ लग रहा है लेकिन इतना टफ नहीं है, लेकिन रिपीट करो कि मैंने क्या बातें कही, तो घर में भी प्रैक्टिस करना। देखो बेटा क्या है, नाउ सी ऐसी, द डायरेक्शन ऑफ डीबी इज द डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, डीबी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। आल्सो द डायरेक्शन ऑफ dB dash vector is also perpendicular to R as shown in figure। as shown जैसे कि मैंने दिखाया आपको फिगर में, as shown in figure, फिगर में दिखाया कैसे, by using right hand thumb, by using here cross product of two rule, cross product of two vector rule। okay, right hand thumb rule or right hand secant rule। okay, very nice। तो बेटा ये किसके बराबर आएगी, देखो अगर ये फाई मैंने लिया, ये फाई है बेटा, देखो क्या है, यहां से यहां तक 90 है और ये भी फाई के बराबर आएगी, ये भी फाई, क्योंकि यहां से यहां तक 90 है, अगर ये फाई है और यहां से भी यहां तक भी 90, ये कॉमन आ गया, अगर ये यहां से यहां तक 90, ये यहां से यहां तक 90, अगर ये फाई है तो बेटा ये भी फाई आएगा, यहां से यहां तक देखो बेटा, यहां से यहां तक 90, यहां से यहां तक भी 90, अगर ये फाई है बेटा ये भी फाई होगा, ये भी फाई होगा, घर में ट्राई, क्योंकि ये कॉमन आएगा। देखो बेटा दिखाऊंगा यहाँ, सपोज मैंने ये दिखाऊंगा, ये कैसे आएगा फाई के बारे, सपोज ये 1 एंगल है, ये 2 है, देखो बेटा 1 + 2 is 90। ओके, विशिंग यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। यही से स्टार्ट करूंगा, दिखाऊंगा कैसे। ओके, वेरी नाइस, गुड लक टू यू।